Hello, how are you students? Now today let's start more about fractions. So topic is more about fractions. That is here in third standard the three type of fractions are there. That is like fraction, unlike fraction and unit fraction. Now today I explain you about all these three fractions. First one is like fraction. Fractions with same denominator. That is called the like fraction. Clear? Now for example, 1/8, 2/8, 4/8, 5/8 are all the examples of like fraction. In this, the denominators are same in each fraction. इसमें हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों? सेम है. That's why we say this fraction as a like fraction. Now understand the definition of like fraction. Again I repeat, like fractions. Fractions whose denominators are same. That is called the like fractions. Now unlike fraction. Next is unlike fraction. Unlike fractions, it means fractions with different denominator. Different denominator. अब बच्चों आपको डिनोमिनेटर तो सबको पता है ना, कौन सा नंबर डिनोमिनेटर होता है? नीचे वाला. और कौन सा नंबर न्यूमरेटर होता है? दैट इज ऊपर वाला. ठीक है. नाउ फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर. यहाँ पे वो फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग है, दैट इज कॉल्ड द अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 3/50, 2/11, 6/10, 3/9 are all the examples of unlike fraction, because here the denominators are different. इनमें सब के denominators different है. Now children, you can understand these two definitions, like and unlike fractions. Now the next is the unit fraction. That is also the important term of this. It is the unit fraction. Now in unit fraction, fractions with 1 as the numerator. Fractions with 1 as the numerator. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 1/4, 2/4, 1/4, 1/6 and 1/7. These are all the examples of unit fraction. Now it is clear all the three, that is like fraction, the same denominator. Unlike fraction, different denominator. Unit fraction, the numerator is equals to 1. Now all of you clear these three terms? Now children, now question number 2. In
number 2, use greater, less और is equals to. अब आपको इस साइन का यूज करना है. Now, A part, see 2/5, then 3/5. Here you see the denominators are same. Denominators same है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था ये. अब 2 और 3, which one is greater? That is 3. So this fraction is greater than this. तो हमने इस तरफ कर दिया. ठीक है. Now the B1, that is 7/9 and 8/9. Again you see denominators are same, so which one is greater? That is 8/9. Now the C part, that is 11/50 and 9/50. Denominators are same, so this 11/15 is greater. Now the D part, you see 4/9 and 4/8. अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर हो वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है. तो 9 और 8 में से स्मॉलर कौन है? दैट इज 8. तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. क्लियर. नाउ ई पार्ट, यू सी 1/3 एंड 1/9. अब आप देखेंगे न्यूमरेटर इज सेम, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो क्या करेंगे बच्चों बताइए. डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कौन सा छोटा नंबर है. यहाँ पे 3 छोटा है 9 से, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा? दैट इज 1/3. 1/9 से ग्रेटर होगा. नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2, F, G, H and I पार्ट 2 इन बुक. ये आपको बुक में ही करना है. क्लियर. वी विल कंटिन्यू द एक्टिविटी 4. ऑल ऑफ यू सी Activity 4, page number 106. Activity 4. Question number 1. That is, circle the greater fraction in each pair. Here pair is given, that is 8/50 and 8/90. Here the 2 pairs are given. Here pair are given. Not 2 pair. Here the pair are given. That is 8/50 and 8/90. अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको इसमें से ग्रेटर फ्रैक्शन पे सर्कल करना है. क्लियर. अब आप चूज करेंगे कि ग्रेटर फ्रैक्शन इसमें से कौन सा है. आपको याद है बच्चों, जब हमने आपको इसे पढ़ाया था फ्रैक्शन को, तो इसमें बताया था कि जब न्यूमरेटर इसमें सेम होता है, न्यूमरेटर इज सेम. जब इसका न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होता है, मीन्स कि जिसका न्यूमरेटर में नंबर छोटा होता है, वो वाला फ्रैक्शन क्या होता है? ग्रेटर फ्रैक्शन होता है. अगेन आई रिपीट, नाउ लिसन केयरफुल. ये बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम दोनों 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस गिवन है तो उसको कंपेयर कैसे करें. अगेन आई एक्सप्लेन यू. दैट इज, सपोज 2 फ्रैक्शंस आर गिवन, 2/7 and the next is 3/7. इस तरीके का अगर फ्रैक्शन है तो उसमें जिसमें डिनोमिनेटर सेम आते हैं बच्चों, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है.
2 बड़ा है या 3 बड़ा है। ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर 3 होता है, 3 वाला बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है ना। समझ रहे हैं ना बच्चों? इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। इसको करने से पहले ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से आपको सुनना है। अब आपको अगर इस तरीके का फ्रैक्शन है बेटा, जैसे सपोज 2/7 एंड हियर इज आल्सो 2/8। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? आपने देखा न्यूमरेटर सेम है यहाँ पे हमारा, तो जो डिनोमिनेटर में जिसका नंबर छोटा है वो कौन सा फ्रैक्शन माना जाएगा? ग्रेटर फ्रैक्शन। तो यहाँ 7 और 8 में से कौन सा छोटा है? दैट इज 7। तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस। अब आपको समझ में आया? जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है इसमें से। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं कि विच वन इज स्मॉलर। अगर हमें ग्रेटर सर्कल करना है तो जो छोटा होता है उसमें वो बड़ा माना जाता है। ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम। यहाँ पे यही चीज़ याद रखने वाली चीज़ है बच्चों, और बच्चे यहीं पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। नाउ इट्स क्लियर टू यू? नाउ यू सी, अब हमारा क्या है? न्यूमरेटर सेम है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर है दैट इज 15 इज स्मॉलर देन द 19, तो 8/15 इज ग्रेटर। ये हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा और इसको हम क्या करेंगे? सर्कल। नाउ द B you see that is the 2/9 and 4/9. Now here the numerator is denominator is same, numerator is different. So which one is greater? That is 4. 2 और 4 में से कंपेयर किया तो 4 ग्रेटर होता है, तो this one is greater. Now in C part you see 5/6 and 5/7. अब आप यहाँ पे देखेंगे कि विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि आपको सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन करना है। अब आपने देखा न्यूमरेटर क्या है हमारा? सेम है, तो हम डिनोमिनेटर पे आएंगे कि दोनों में से कौन सा छोटा है? 6 छोटा है, तो दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। That is you circle the 5/6. Now is it clear? D, E and F. D, E and F doing homework. ये आपको होमवर्क में करना है, नोटबुक में। Clear this? Now I read question number 3 from the book. Rohit and Munaf got a cake, each from their mother. Rohit ate 3/8 of the cake, while Munaf ate only 2/8. Who ate more? किसने ज़्यादा खाया ये बता। Now Rohit ate 3/8 of a cake and Munaf ate 2/8 of a cake. Here this is a cake and I divide it into 8 parts. Again this is a cake, I divide it into 8 parts. Now Rohit ate 3 out of 8. उसने 3 parts खाए cake में से. And Munaf ate only 2. उसने सिर्फ 2 ही पार्ट खाए। तो किसने ज्यादा खाए बच्चों? That is the Rohit. तो we write Rohit ate more than Munaf. कि हमें यही पूछा है कि who ate more, किसने ज्यादा खाए? It means रोहित ने ज्यादा खाया. Clear? Now the question number 4. I explain you and self you do it. That is Aditi and Krishna started writing at the same time. Same time पे उन्होंने लिखना शुरू किया. After some time, Aditi completed 3/5 of her work.
कुछ समय बाद उसने 3/5 जो 3/5 था वो वाला ऑफ हर वर्क, अपने काम का इतना पार्ट 3/5 पार्ट उसने कंप्लीट कर लिया। कृष्णा कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द वर्क, और कृष्णा ने कितना वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट किया? 3/4। हु कंप्लीटेड मोर वर्क, अब किसने ज्यादा कंप्लीट किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं हिंट देती हूँ बच्चों आपको, तो आप इजीली से फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या याद रखना है, न्यूमरेटर सेम दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। तो जिसका डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, पहले तो सबसे अपने माइंड में यही रखना है कि न्यूमरेटर सेम होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। तो मीन्स हमें ये पता करना है कि हु कंप्लीटेड मोर वर्क, किसने ज्यादा काम किया। नाउ यू विल फाइंड आउट। इफ आफ्टर फाइंड आउट देन यू विल सबमिट योर वर्क ऑन माई पर्सनल WhatsApp number. Clear?